1 or 2 minutes. Yes, good morning, all of you. Let's start with the chapter. So yesterday we were discussing about the congruency of triangles, the importance of sequence of the naming of congruency, and of course the full form of CPCT, corresponding parts of congruent triangles. We were discussing about the 4 rules by which we can prove that the triangles are congruent. They are the exact figure, right, of each other, like that. Okay. चलिए लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 7.1 और 7.1 के कुछ क्वेश्चंस मैं करता हूं आपके साथ डिस्कस और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दूंगा. अगेन right now your motive should be that you have to understand these questions. Understanding is more important, no? So you have to understand these questions and then I will send you the PDF. Okay, if you wish to write it along with the class, you are welcome to do so. Otherwise, need not to worry about the PDF, the solution and all. Writing section we can do it afterwards also. As I have told you earlier also, mathematics is a subject which needs understanding first of all, and then the practice part. Okay, so practice you have to do it yourself. Okay, right? So let's start with the first exercise 7.1. I'm discussing the very first question. Again, I'm discussing. I'm not writing it properly as we used to do it in our copies. Okay, so I'm not solving it properly, but I am just discussing it with you. Okay, right? So let's start. Exercise 7.1. He says it is a quadrilateral in which there are 2 triangles and ACDD are the 2 triangles. Although it doesn't seem that they are congruent to each other. थोड़ा सा इधर मैं बना देता हूँ. चलो ये मान लीजिए अपने पास में इस तरह से है. ACTD he says is a quadrilateral in which AC and AD are equal. The very first thing which we were been informed earlier also, that in case of geometry it is always advisable that whatever is equal we should mark it in the figure itself. लेबलिंग चलती रहनी चाहिए, है ना, लेबलिंग होती रहनी चाहिए, राइट? सो अपने पास में जैसे जैसे वो कहता जाए कि ये चीज इक्वल है, ये ऐसा है, तो हम उसको फॉलो करते चले, राइट? जैसे इस क्वेश्चन में उसने कहा कि AC इज इक्वल टू AD, तो मान के लीजिए AC और AD इक्वल है. ये हमें समझने में भी आसानी रहेगी और सॉल्यूशन लिखने के टाइम में भी आसानी रहेगी, इसका हमें फायदा मिलेगा, राइट? फिर उसने कहा in the next sentence he says that AD bisects angle A. AD, the line segment AD bisects angle A. That means this angle is divided in 2 parts, and because the word is bisection means dividing into 2 equal parts. So these 2 parts are equal to each other. He says that we need to prove that the congruent are the triangles are congruent and or not. First of all, and then what can you say about BC and BD? BC और BD क्या है? इक्वल है, अनइक्वल है, क्या है? वो पूछ रहा है. ठीक है, चलिए अपन देखते हैं. इस फिगर की बात करते हैं बेटा. देखो कितना इजीली समझ में आ रहा है कि हमें 3-4 रूल अप्लाई करने हैं. या तो SSS फर्स्ट रूल, अदरवाइज SAS, या फिर ASA, या फिर हमारे पास में फोर्थ रूल है RSS. इनमें से कोई भी रूल लगा के, कोई भी रूल अप्लाई करके हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट हैं ये प्रूव कर सकते हैं, है ना? तो अगर हम इसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने बैठे हैं तो देखिए AC इज इक्वल टू AD, एक एलिमेंट मिला, दोनों का इक्वल है. ये एंगल ACAD और एंगल DAB भी इक्वल है, क्योंकि उसने कहा ये हमें गिवन था, उसने दिया कि AB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. एक और एलिमेंट चाहिए. अगर हमें एक और एलिमेंट मिल जाए तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, है ना? तो एक साइड मिल गई, एक एंगल मिल गया, एक और एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है. वो एलिमेंट क्या हो सकता है? जरा हम थोड़ा सा भी अगर ऑब्जर्वेशन रखते हैं इस क्वेश्चन, इस फिगर को देख सकते हैं, तो हम देख सकते हैं AB दोनों की कॉमन है
ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल ADD में AD इज कॉमन। भाई कॉमन का मतलब ये है कि अगर उस ट्राइंगल के लिए ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए वो 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो नीचे वाली ट्राइंगल के लिए भी 6 सेंटीमीटर ही उसकी लेंथ होगी। इट इज द कॉमन साइड। ओके, क्या इस रूल को बता सकते हैं हम कौन सा रूल है? देखें ध्यान से, एक एंगल और दो साइड। जब एक एंगल होता है और दो साइड्स होती हैं तो हमें समझाया गया था द एंगल शुड बी इंक्लूडेड बिटवीन टू इक्वल साइड्स। चेक करें क्या वो एंगल दोनों इक्वल साइड्स के बीच में ही है? ये होना जरूरी है ना? आपने को समझाया गया था कि ये HAS होता है, ये EHS या कोई और रूल नहीं होता। तो एंगल जो है वो हमेशा इक्वल साइड के बीच में आना चाहिए। कोशिश करें जरा जरा समझने की, क्या ये एंगल दोनों इक्वल साइड के बीच में है? देखिए, ठीक है। सो अपन देखते हैं, बिल्कुल है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, राइट? सो कॉन्ग्रुएंसी लिखने का तरीका, क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, जैसे मैंने कहा मैं उनका सोल्यूशन नहीं लिखूंगा प्रॉपर्ली, लेकिन कुछ शुरुआत के क्वेश्चन आपको to have to set an example for the other questions. So मैं कुछ क्वेश्चन जो है आपको प्रॉपर्ली लिख के बता रहा हूँ, ठीक है? आपने फिगर ड्रॉ किया, आपने उसको लेबल किया, अब इसका सोल्यूशन लिखना स्टार्ट किया। चलो, सबसे पहले किन दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हो उसका नाम लिखिए। जिन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने बैठे हो उनका नाम लिखते हैं, ठीक है? ट्राइंगल क्या लिखें? ABC, ACB या CAB या क्या? जो मर्जी, जैसे मर्जी लिख सकते हैं, है ना? लेकिन दूसरे का नाम लिखते हुए ध्यान रखेंगे। तो मैं अगर ट्राइंगल CAB लिख रहा हूं, इन ट्राइंगल CAB, तो दूसरे ट्राइंगल में मैं लिखूंगा ट्राइंगल DAB। चेक कीजिए, सही है ना? अगर मैं यही से अगर सही सीक्वेंस रखूंगा तो लास्ट में भी मैं इसकी गलती नहीं करूंगा। कॉन्ग्रुएंसी में हमें कल भी बहुत अच्छी तरह से समझाया गया था कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस में नहीं लिखा जाए तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, राइट? सो अब हमें यहाँ पे देखना है, ट्राइंगल CAB है तो ये वाला ट्राइंगल DAB होना चाहिए, ट्राइंगल DAB। हालांकि हम केवल इन ट्राइंगल और एंड लगा रहे हैं, एंड में आप कोई भी सीक्वेंस लिख सकते हैं, लेकिन अगर यहीं से सीक्वेंस सही रहेगी तो लास्ट में हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा वर्क जो है वो बहुत प्रॉपरली होगा। ओके, चलो चेक करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ट्राइंगल की साइड AC, दूसरे ट्राइंगल की साइड AD के इक्वल है। सो AC इज इक्वल टू AD। एक एलिमेंट किया अपने इक्वल, वो किस रीजन से इक्वल है उसका रीजन जरूर लिखना है, क्योंकि अभी भी मिड टर्म में भी मैंने देखा बहुत सारे बच्चों की कॉपीज में रीजंस नहीं थे। विदाउट रीजंस ज्योमेट्री में आंसर्स नहीं लिखे जाते और केवल आंसर लिखे जाते हैं तो वही जो मैं कल आपको बताता था, नहीं लिखे तो नहीं लिखे तो मार्क्स कटेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है? सो वी हैव टू राइट आवर आंसर प्रॉपर्ली। सो द प्रॉपर मैनर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नेम्स ऑफ द ट्राइंगल्स जिनकी आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर रहे हो, ताकि उनके एलिमेंट्स से देखे जाएं। इसमें तो है ही है दो ट्राइंगल। फिर दूसरा, अब जो एलिमेंट इक्वल करते जा रहे हैं, जिस एलिमेंट की हेल्प ले रहे हैं उस एलिमेंट का रीजन लिखते हुए चलते हैं। AC इक्वल्स टू AD क्यों है? क्यों? क्योंकि उसने गिवन था, ये दिया हुआ था, ये दोनों इक्वल हैं। फिर उसने कहा एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल DAB। क्या रीजन है, क्यों कह दी हमने ये इक्वल है? हम लिख सकते हैं सिंस AB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, सिंस AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, या फिर सिंपल रीजन लिख सकते हैं गिवन। ये भी गिवन ही था कि ये दोनों पार्ट इक्वल हैं। गिवन एक तो है कि AB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, है ना? अब अपने पास में तीसरा एलिमेंट क्या ढूंढा आपने? AB, बिल्कुल। सो AB और AB जो साइड है दोनों के पास है वो कॉमन है, और जो कॉमन साइड हो जाएगा वो तो इक्वल ही होगा, सिंपल सी बात है, कॉमन है ना? सो देयरफॉर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। So triangle CAB is congruent to triangle DAB। देखिए मैंने पहले दिमाग लगा लिया था, मैंने पहले सोच लिया था कि क्या ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसे अब मुझे लिखते हुए चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे जैसे भी मर्जी, जिस भी ऑर्डर में लिखे होंगे, अगर मैं इसको यहाँ पे सीक्वेंस में नहीं लिखूं तो गलत होगा। स्टेटमेंट में जब कॉन्ग्रुएंसी का साइन आ जाता है तो सीक्वेंस सही होनी चाहिए। कौन सा ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट? तो ट्राइंगल CAB इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DAB। अगर कोई कहता ट्राइंगल ABC तो वो कहता
उसको लिखना चाहिए ट्राइंगल ABD के कॉन्ग्रुएंट है। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है ना। सो हमने देखो क्या किया, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया। इन चार में से कौन से रूल की हेल्प ली? हमने रूल लगाया SAS, साइड एंगल साइड। हमने थ्योरम लगाई SAS की, हमने लगाई थ्योरम या रूल SAS वाला, तो वो मेंशन करेंगे ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट बहुत आराम से, ठीक है। व्हाट डज इट इंप्लाई? अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो व्हाट वी कैन से अबाउट BC एंड BD? BC and BD are the third element, third side। देखो AC AD की इक्वल है, AD AD कॉमन है, तो BC और BD भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स जैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। हम इसकी कॉन्वेंसी से भी देख सकते हैं। देखो हम कह रहे हैं BC ना, BC जो है वो BD के इक्वल होगी। सीक्वेंस यही कहती है, हमने सही लिखा है, प्रॉपर्ली लिखा है सीक्वेंस, तो अपने पास में साइड की सीक्वेंस भी सही आएगी, एंगल की सीक्वेंस भी सही आएगी, है ना। सो हम लिख सकते हैं कि BC, it implies that BC is equal to AB by CPCC. And what does CPCC stand for? Corresponding parts of congruent triangle. Corresponding parts of congruent triangle. तो ये दोनों तो वैसे ही अपने पास में इक्वल ही होने चाहिए थे, ठीक है ना बच्चे। चलो, सो नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर वैसे वही कहूंगा, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लिए होमवर्क में छोड़ूंगा, आप अपने आप कीजिएगा। सिंपल क्वेश्चंस होंगे तो डेफिनेटली मैं ये आपसे उम्मीद करूंगा कि आप वो खुद कर लें, ठीक है। चलो, इसमें इस तरह की एक फिगर दी हुई है अपने को ABCD, जिसमें BD और AC भी ज्वाइन है। अब जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जाएगा वैसे वैसे उसको लेबल करते हुए चलेंगे। Labeling is important and it helps in understanding as well as in expressing or writing the question also. He says ABCD is the quadrilateral in which AD is equals to BC. AD is equals to BC. मार्क कर लीजिए AD और BC इक्वल है, ठीक है, ओके। फिर he says angle DAB, एंगल DAB, ये वाला एंगल DAB is equals to angle CBA, is equals to angle CBA। चलिए, तो CBA यानी कि ये पूरा एंगल जो है ये आपस में दोनों इक्वल हैं। He says prove that the triangle ABD and triangle BAC are congruent to each other, ठीक है। चलो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, इस लाइन की जरूरत नहीं है, एक बार इसलिए इसको नहीं देखते, रब नहीं करेंगे फिगर में, बता समझाने के लिए रब कर रहा हूं, ठीक है, इसको नहीं देखते। देखिए अपने पास दो ट्राइंगल्स हैं बड़े बड़े, है ना। ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है, एलिमेंट्स ढूंढते हैं। चलो, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BAD में एंगल ABC और एंगल BAD इक्वल है, पहली बात। फिर AD और BC भी इक्वल है, दूसरी बात। तीसरा AB कॉमन तो है, चेक करो, देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में है, इस ट्राइंगल का भी पार्ट है और ये इस ट्राइंगल का भी पार्ट है, ये दोनों ट्राइंगल का पार्ट है। AB तो दोनों का ही बेस है, कह सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो हो गए। और रूल कौन सा लगाया हमने? साइड एंगल साइड का। चेक कीजिए क्या एंगल इज इंक्लूडेड बिटवीन टू इक्वल साइड, क्योंकि ये क्लॉज जरूरी है, ये रिक्वायरमेंट है उसकी, SAS लगाने की ये बेसिक मतलब नेसेसिटी है कि द एंगल शुड बी इंक्लूडेड बिटवीन टू इक्वल साइड। क्या जो एंगल इंक्लूड किया है, जो एंगल अपन ने मार्क किया है, वो इक्वल साइड के बीच में है? चेक कीजिए, अगर है तो ठीक, और नहीं तो गड़बड़ है, और लकीली यहाँ पे ऐसा है ना। चलो, तो अपन लिख सकते हैं इन ट्राइंगल, रूल्स वही फॉलो करेंगे, देखिए पैटर्न वही है। सबसे पहले ट्राइंगल्स का नाम लिखेंगे कि इसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर रहे हैं। ट्राइंगल ABC में और ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BAD में प्रूव कर रहे हैं। तो BAD में हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर रहे हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है।
ठीक है, पहले ही अगर सीक्वेंस में लिख लेंगे तो बाद में सीक्वेंस में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, ABC ट्राइंगल में AB और BAB ट्राइंगल में BA को AB भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप AB लिख सकते हैं। ये क्या है, ये कॉमन है, ठीक है। चलो, फिर अपने पास क्या आया, एंगल ABC, ट्राइंगल ABC का एंगल ABC, पूरा एंगल ABC, वो एंगल BAD के इक्वल है, एंगल BAD के इक्वल है, बिल्कुल एंगल BAD के इक्वल है। ये हमें गिवन था, उसने कहा था दे आर इक्वल, ही हैज गिवन अस। देन वन मोर एलिमेंट इज नीडेड, ट्राइंगल ABC की साइड BC और ट्राइंगल BAD की साइड AD, they are also equal. It was also given to us. So when all the three elements we have written with regions, now we can say that the triangles are congruent. तो लिख लेते हैं ट्राइंगल, therefore triangle ABC is congruent to triangle BAD by XAS. ठीक है, side angle sides applied here and the triangles are congruent. If the triangles are congruent, what we can say about BD and AC? क्या कह सकते हैं हम BD और AC के बारे में? अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं हम, तो जरा चेक कीजिए, हम प्रूव कर सकते हैं कि BD और AC इक्वल होंगे क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के। दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो और ये दोनों साइड जो हैं वो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। चेक कीजिए ना, दोनों ट्राइंगल में AB तो कॉमन ही था, BC और AD भी इक्वल थी, तो फिर AC और BD भी तो इक्वल होगी क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, पहली बात है ना। फिर उसने शायद वो एक और पूछा पार्ट, उसने कहा क्या एंगल ABD, ये छोटा सा एंगल ABD, क्या एंगल BAC के इक्वल है? ABD ये वाला एंगल आप इसको सेपरेट करके देख सकते हैं, ये AB और ये D है, ये एंगल ABD, और दूसरी फिगर एक और सेपरेट कर लीजिए, इस तरह से आपके पास में है एंगल BAC, क्या ये दोनों इक्वल हैं? A एंड C आर दे इक्वल? जरा चेक कीजिए इस ट्राइंगल में ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि देखिए ना, इस चाहे तो सीक्वेंस में देख सकते हो, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAD होगा बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सो एंगल ABD इज इक्वल टू ABD, ये वाला छोटा सा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल BAC, ये छोटा सा एंगल जो आ रहा है यहाँ पे, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं बिकॉज दे आर ऑल्सो द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, चेक कीजिए, देखो कितना इजी था। एक और क्वेश्चन, क्या ढूंढना था? दो एलिमेंट्स तो उसने दे ही दिए थे, हमने कॉमन ढूंढा। इन द प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो वी हैव डन द सेम थिंग, दो एलिमेंट्स उसने दिए हुए थे, हमने क्या ढूंढा था? हमारी तरफ से एफर्ट यही था, या हमारी केवल ऑब्जर्वेशन ये थी कि एक साइड जो है वो कॉमन भी है, एक साइड जो है वो कॉमन भी है, बस इतना सही हमने ढूंढना था और कुछ नहीं, है ना। सिमिलर इज द केस ऑफ द नेक्स्ट वन ऑल्सो, क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन फोर्थ, ऑल आर बेस्ड ऑन द सेम, राइट। आई एम शिफ्टिंग द फिफ्थ क्वेश्चन, आई एम मूविंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, क्योंकि थर्ड फोर्थ भी सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, उसमें भी आपको यही देखना है कि एलिमेंट्स क्या इक्वल हैं। चेक कीजिएगा, आपको कितनी बात समझ में आती है वो। ठीक है, चलो फिफ्थ क्वेश्चन करो, सिंपल देखते हैं, एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि हमें कितनी चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम कितनी चीजें हम कैच कर पाते हैं। ठीक है, चलो। He says line L is the bisector of angle AB. Sorry, line L is the bisector of an angle A and B is any point on L. Okay.
कोई एंगल है ए एंड लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एफ। बाइसेक्टर है तो सबसे पहले हमें मान कर लेना चाहिए दोनों पार्ट जो है वो इक्वल है। ओके, एंड इन केस पी एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन एल, ये एल जो पॉइंट है इस पे पॉइंट है बी, मान लेते हैं बी। ठीक है, कोई एंगल ए था, फिगर वैसे आपको दी हुई है लेकिन समझाने के लिए मैं टुकड़ों में बना रहा हूं। कोई एंगल है ए, उसका बाइसेक्टर है लाइन एल और लाइन एल पे कोई पॉइंट है बी। फिर BP and BQ are the perpendiculars from B on the arms. So BP or BQ are the perpendiculars drawn on the arms of angle A. Okay, ठीक है, इस तरह से कुछ फिगर होगी, है ना। वो कह रहे क्या प्रूव कर सकते हो, ट्राइंगल APB and triangle AQB are congruent to each other. These two triangles are congruent to each other. How? चेक कीजिए, अपने को समझ में आना चाहिए था क्योंकि हमें एक चीज ऑब्जर्व करनी आनी चाहिए। देखो दो एलिमेंट उसने दिए हुए हैं, कौन कौन से एलिमेंट दिए हुए हैं। उसने कहा L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। इफ L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A तो ये दोनों पार्ट एक्स यानी कि हमें मार्क करें ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल है। ठीक है, एक 90 डिग्री का एंगल है दोनों के पास में, ये रहा 90 और ये भी 90। एक और चाहिए, क्या हम RHS लगा सकते हैं यहाँ पे? राइट एंगल है इसलिए नहीं, राइट एंगल है ठीक है, हाइपोटेन्यूज है ठीक है, लेकिन एक साइड और चाहिए, वो हम प्रूव नहीं कर सकते। क्या हम दो एंगल एक साइड लगा सकते हैं, यानी एंगल साइड लगा सकते हैं? चेक कीजिए, क्या हम एंगल साइड लगा सकते हैं? एक 90 डिग्री का एंगल है और एक एक्स है, इसके पास भी एक 90 और एक एक्स है। एक और चीज चाहिए, एक एलिमेंट और चाहिए, कोई भी साइड जो आपस में इक्वल हो दोनों की, और वो है AB इज कॉमन। AB, side AB is common. So angle side face both the triangles are congruent to each other. सही है ना? क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो साइड है ये कॉमन थी, राइट? सो अगर अपने पास में AB कॉमन आ चुकी है तो हम प्रूव कर सकते हैं एंगल साइड फेस बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। इजी, अगेन लिखना में आता है, हमें समझाया क्या कैसे लिखेंगे। ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल APB सीक्वेंस से ही लिखेंगे, दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ये गिवन था, दो एंगल 90 डिग्री के हैं, ये भी गिवन था। हमने एक चीज एलिमेंट ढूंढी है, वो है AB एंड AB इज कॉमन, राइट? ठीक है ना। सो हमारे पास में फिफ्थ क्वेश्चन हो या फोर्थ हो या थर्ड हो, देखिएगा बहुत सिंपल, एक एक चीज अपने को कॉमन जो चीज ढूंढनी है वो हमें ढूंढनी है। ठीक है, राइट? चलो, सो लिखने की कोशिश कीजिएगा। आई विल सेंड यू द PDF। मैंने आपसे जैसे कहा कि डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करना चाहूंगा, कुछ को मैं लिख के भी बताऊंगा आपको कि हाउ टू राइट इट, जहां पे मुझे लगेगा वहां पे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वो कहता है कि आपको इन फिगर, सो फिगर इज गिवन टू अस, तो एक बार फिगर बना लेते हैं। चलो, कुछ इस तरह की उसने हमारे पास में फिगर बना के दी हमें, और उसने बातें करी इस फिगर में। वो कहता है ट्राइंगल ABC है, एक तो ट्राइंगल ABC है, सॉरी नहीं है, ट्राइंगल ABC है, ओके, और एक ट्राइंगल ABE है, एक ट्राइंगल ABE है, ओके, ठीक है। इसका मतलब इस फिगर में हम एक बारी के लिए इस CD को देखना बंद कर देते हैं और अब देखते हैं, इसमें दो ट्राइंगल्स की बात कर रहा है, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACE की बात कर रहा है वो। ठीक है, दो ट्राइंगल है, ठीक है, मान ली बात आपकी। उसने कहा कि AB और AD इक्वल है, AB और AD इक्वल है, ठीक है। फिर उसने कहा कि अपने पास में इनके बनाने पड़ेंगे, AC जो बात कर रहा है वो ट्राइंगल ABC पूरे की बात कर रहा है, ठीक है। सो AB इज इक्वल्स टू AB, ठीक है, AC is equal to AE, AC and AE are equal, ठीक है, ये बात भी समझ में आती है। चलो मार्क कर दिया हमने। एंगल BAB is equal to एंगल EAC is equal to एंगल EAC, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। चेक कीजिए, देखो हमने मार्किंग क्या करी,
जो जो उसने गिवन था वो हमने उस फिगर में मार्क कर दिया। मार्क करने के लिए फिर से क्लियर करें अपने को, मार्किंग से एक तो हमें क्लियर हो जाता है कि हम क्या प्रूफ करने बैठे हैं। दूसरी बात हमें इससे ये फायदा होता है कि लिखने में हमें बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है ना। चलो, तो उसने एडी इक्वल टू एडी कहा, हमने मार्क कर लिया। एसी इक्वल टू एई कहा, हमने मार्क कर लिया। एंगल बीएडी इक्वल टू एंगल ईएसी कहा, तो हमने वो भी मार्क कर लिया कि ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं। वो कह रहा है कि क्या ट्रायंगल एबीसी को ट्रायंगल एडीई के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो? क्या ट्रायंगल एबीसी को ट्रायंगल एडीई के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो? चेक करते हैं। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एडीई को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने बैठे हैं तो हमें क्या क्या इक्वल मिल रहा है? देखो, एबी इक्वल टू एडी उसने गिवन कहा था कि है, ठीक है ना। फिर उसने कहा था एसी इक्वल टू एई है, ये भी गिवन है, दो साइड इक्वल थी। तीसरी साइड बीसी और डीई इक्वल नहीं है, प्रूव नहीं कर सकते, अभी छोड़ दो। एंगल दिया हुआ था, लेकिन एंगल के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो एबीसी ट्रायंगल का छोटा सा पार्ट है, पूरा एंगल नहीं है, एंगल बीएसी नहीं है। इसी तरह से उस ट्रायंगल एडीई की बात करें तो भी ये छोटा सा पार्ट है, ये पूरा एंगल एडीई नहीं है। अब क्या करें? थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। ये छोटा सा एंगल अगर हम दोनों एंगल्स में ऐड कर दें तो एंगल बीएडी में ऐड करेंगे और एंगल ईएसी में ऐड करेंगे तो ये कॉमन एंगल जो है वो पूरा एंगल बीएसी और एंगल ईएसी हो जाएगा। नहीं है इस बात में? चलो दोबारा समझते हैं। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल गिवन है हमें, उसने क्या गिवन था ना, ये तो दिया हुआ था, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 अगर इक्वल है तो इस बीच वाले एरिया को, इस कॉमन एंगल को 3 मार्क कर लेता हूं। चलो, ये 3 है हमारे लिए। तो क्या एंगल 1 प्लस एंगल 3 एंगल 2 प्लस एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा? हाँ, सिंपल मैथमेटिक्स से व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द रिजल्ट इज आल्सो इक्वल, द होल इज इक्वल, है ना। हम किसी भी इक्वेशन में दोनों तरफ कॉमन चीज जो है वो ऐड कर सकते हैं। दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं तो इट विल नॉट ब्रिंग एनी चेंज टू द इक्वेशन, इट विल बी अ ट्रू स्टेटमेंट। So what we want to say is here is that angle 1 and angle 2 are equal. Angle 3 दोनों में ऐड कर देते हैं, क्या फायदा होगा? इससे ये पूरा एंगल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एंगल हो जाएगा, और इसी तरह से ये भी पूरा एंगल यहाँ पे हो जाएगा, और ट्राइंगल में SAS लगा पाएंगे अपन, क्योंकि हमारे पास में दो साइड तो इक्वल थी। ये एंगल बीच में जो था वो पूरा नहीं था, ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल था, एंगल 3 हमारे पास में नहीं था, तो हमने क्या किया, एंगल 1 और एंगल 3 को दिया, तो एंगल BAC एंगल EAD के इक्वल हो जाएगा, और SAS हमारी जो थ्योरम है वो लग जाएगी, है ना। सो इस चीज को दोबारा से समझने के लिए एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। चलो, फिगर क्या गिवन थी अपने को? हमें फिगर गिवन थी इस तरह का एक ट्राइंगल ABC, उसी में एक और ट्राइंगल अपने पास में इस तरह से मर्ज था, ट्राइंगल ADE, ठीक है। और अपने पास में क्या क्या गिवन था चेक करते हैं। AD इक्वल्स टू AB, AC इक्वल्स टू AE, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, ये भी गिवन था। हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADE इक्वल है, ठीक है। ABC में ये वाला एंगल पूरा नहीं है तो इसको 3 कह देते हैं। चलो और लिखना स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, ये दो ट्राइंगल है जिनकी कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, चेक कीजिए क्या AB इक्वल टू AD है? ये गिवन था, ठीक है। सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अगेन जब हम एंगल 1 और एंगल 2 लिख रहे हैं तो फिगर में एंगल 1 और एंगल 2 मार्क होने चाहिए, क्योंकि अभी भी किसी स्टूडेंट से मिड टर्म एग्जाम दिया, उन्होंने ABCD कुछ नए नाम दिए, X और Y नाम दिए, लेकिन फिगर नहीं बनाई। फिगर के बिना टीचर को कैसे पता चलेगा भाई किसको 1 बोल रहे हो किसको 2 कह रहे हो? तो फिगर तो होनी चाहिए ना।
So since angle 1 is equals to angle 2, therefore angle 1 plus angle 3 is equals to angle 2 plus angle 3. और एंगल 1 प्लस एंगल 3 करते ही इस एंगल का नाम हो जाएगा एंगल BAC, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 करते ही इस एंगल का नाम हो जाएगा एंगल EAC, और हमें यही चाहिए EAD, सॉरी, और हमें यही चाहिए था पूरे पूरे दोनों एंगल्स, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, ठीक है। एक एलिमेंट और चाहिए और वो दिया हुआ है AC और AE, AC and AE are equal. This is given to us. Therefore, the triangle ABC and the triangle, another triangle, triangle ADE are congruent to each other by SAS. If the triangles are congruent, their corresponding parts are equal. So definitely BC will be equal to DE by CPCD, corresponding parts of congruent triangle. Okay? कोशिश कीजिए समझने की, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग था, डिफरेंट था, और थोड़ा सा लेवल बढ़ चुका है ना।